Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are on track as far as banking exams are concerned. Now multiple exams are there in next 3 months. And the first exam that is coming before us is IBPS clerk. Some of you may be having RBI assistant exam also. For that we are running separate series how you should prepare. But all other examinations, we are focusing one day on one exam so that gradually we cover all the examinations. Yesterday we covered IBPS clerk pre-examination. So if you follow the schedule that is given in these videos on daily basis, I feel you will be able to cover all the exams well in time. So today we will focus on IBPS RRB Office Assistant Main. Now, if we look at this examination, we have to attempt one mock test today. Link of mock test is available in description and comment column. If you have already subscribed this mock test, fine. If you have not subscribed, you must subscribe it today. It is a good quality mock test that will help you. Second important thing is how many mock tests you should attempt daily, or after how many days of gap one should attempt the mock test. That is very relevant because over usage of mock test will drain away your time. You require time for identification of your weak areas and then working conceptually on that. So if you have proper mix of both, you will definitely succeed. So as far as main mock tests are concerned, I always suggest you should give gap of 3 days between one mock test and another mock test. Say you have already done IBPS PO mock 3 days ago. Then you can attempt the IBPS RRB Office Assistant Main today. But if you have attempted any main mock test yesterday, you will not attempt mock test today. This gapping you must always keep in mind because some candidates are doing overplaying with the mock test and then they are developing fatigue and it is of no use. Purpose is systematic way of preparation. And if you are planned and you are systematic and you are able to execute it, you are ahead of others. So after doing this, now you have identified your weak areas, make a timetable. There is a video how to make the timetable, devote equal time to every subject. So 1 hour you will focus on Hindi or English, whatever is your language. Second hour will be dedicated to quant and third hour will be dedicated to reasoning. Always give half an hour rest between one slot and another slot. That will refresh you and that will give you energy to work harder. Then you must spend 1 hour on current affairs. Current affairs plays very vital role and I always insist you should try to cover as much as current affair you can. Some people ask, is 4 months is enough, 5 months is enough, 6 months is enough? I always tell you nothing is enough in competition. The enough is if you are doing better than others. If most of the people are preparing for 4 months, 5 months is better. If most of the people are preparing for 5 months, 6 months is better. And if you see the trend of recent exams, the current affair up to 12 months is coming in most examination, whatever is the name of examination. Then comes half an hour rest and then you should watch 10 videos from Banking and Financial Awareness playlist. A beautiful videos playlist link I have provided you in the description box. And why you should watch this? I am making one video on that. You should also watch that video today. That will give you idea why I am insisting you should watch Banking and Financial Awareness videos. Then you should cover the banking current affair. 4 playlist is available to you, July, August, September, October. Very soon I will be introducing November series of videos.
and then spend half an hour on computers. That should be your schedule for the day. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अगले 3 महीने में लगातार हमारे एग्जाम्स हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए हमें फोकस करना है। तो इसके लिए हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई है कि एक एग्जाम को हम एक दिन फोकस करेंगे। इस तरीके से करते करते हम सारे एग्जाम लगातार तैयार करते चले जाएंगे। तो जो भी हमारा जिस एग्जाम का फोकस जिस दिन वीडियो है, अगर वो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। इन बिटवीन एक आरबीआई असिस्टेंट का मेन एग्जाम भी है, उसमें बहुत कम कैंडिडेट्स हैं। उसके लिए अलग से मैं आपको 5-5 दिन के 4-4 दिन के गैप से वीडियो दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप काम करिए। और क्योंकि अधिकांश लोग उसमें नहीं हैं, इसलिए ये हमारी सीरीज चल रही है जिसको अधिकांश लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि मॉक टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो आपकी कमियां ढूंढ के आपको बताता है। एक अच्छे मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। काफ़ी लोगों ने ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया और उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी सावधानी हमने ये बरतनी है कि मॉक टेस्ट को हमें ओवर प्ले नहीं करना है। जब हम रोज उसकी बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा भी नहीं है, हर चीज़ का एक ऑप्टिमम लेवल है। तो यदि मेंस का मॉक टेस्ट पिछले 3 दिनों में आपने कभी भी किया है तो आज आपको नहीं करना है। आपको कब करना है? अगर पिछले 3 दिन में आपने मेंस का मॉक टेस्ट नहीं किया तो मेन के मॉक टेस्ट में हमें एक मॉक टेस्ट और दूसरे मॉक टेस्ट में 3 दिन का गैप जरूर रखना है। प्रीम का मॉक टेस्ट हम अल्टरनेट डे कर सकते हैं, वो छोटा है, लेस देन 1 आवर का है। मगर जो मेंस का मॉक टेस्ट है वो लगभग 3 घंटे का है। तो अगर हम एक एग्जाम में ही 3 घंटे बैठे रहेंगे तो हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। मॉक टेस्ट है, उससे हमें अपनी कमियां ढूंढनी है, पर हमारे पास वक्त होना चाहिए उस कमियों वाले एरिया पे पढ़ाई करने का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने टाइम टेबल बनाना है। 1 घंटा इंग्लिश या हिंदी को देना है, आधे घंटे का रेस्ट करना है। 1 घंटा हमने क्वांट को देना है, आधे घंटे का रेस्ट करना है। फिर 1 घंटा हमने रीजनिंग को देना है। इसके बाद हम आएंगे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा पेपर है जो आपको लीड दिला सकता है। अब इसमें काफ़ी लोगों के मन में विचार होता है कि हम 5 महीने की करें, 4 महीने की करें, 3 महीने की करें। इसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि हमें औरों से अधिक पढ़ना है। एक अच्छा सोर्स करंट अफेयर का मैंने आपको दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मंथली PDF से आप पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं सर शॉर्टकट बता दीजिए। करंट अफेयर का कोई शॉर्टकट नहीं है। करंट अफेयर आपको एग्जॉस्टिव पढ़नी होगी, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जितना अधिक आपने पढ़ा हुआ होगा आप फायदे में रहेंगे। रिसेंट एग्जाम्स में आपने देख ही लिया है 12-12 महीने तक की करंट अफेयर आई है, और मैं ये शुरू से कहता आया हूँ कि 12 महीने की करंट अफेयर हमें कवर करनी चाहिए। हाँ, अगर हमें लग रहा है मुश्किल, हम 12 महीने की नहीं कर सकते हैं, पहले 4 महीने की पक्की करिए, फिर 5वां महीना कवर करिए, फिर 6वां, फिर 7वां, इस तरीके से बढ़ाते चले जाइए। और जब हम 4 महीने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैकवर्ड बात कर रहे हैं। बैकवर्ड का मतलब है कि पहले हमें लेटेस्ट करनी है। मान लो नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर हम पहले करेंगे, फिर अक्टूबर करेंगे, फिर सितंबर करेंगे, फिर अगस्त करेंगे, फिर जुलाई करेंगे। इस तरीके से पीछे जाएंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन लेटेस्ट में से होगा। मगर ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर एक व्यक्ति के मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं करंट अफेयर की और आप 25 कर पा रहे हैं तो आपको 5 नंबर की लीड है। तो जितने अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे उतनी आपकी लीड बढ़ती जाएगी और उतने आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आप आधे घंटे का गैप दे दीजिए और इसके बाद आप बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देखिए 10। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है, क्यों देखनी चाहिए? इस पे आज मैं एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। इसके बाद आधे घंटे का आप गैप दीजिए और बैंकिंग करंट अफेयर की आप तैयारी करिए। उसकी 4 प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसमें से अधिकांश वीडियोस आप देखिए और अधिक से अधिक वीडियो आपने कवर करनी है। नवंबर की सीरीज अब बहुत जल्दी हम उसमें शुरू करने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।